I have to inform members that the panel of vice chairpersons has been reconstituted with effect from 13th September 2023 with the following members: Srimati Anta Madam, Srimati Sumitra Kalmik, Srimati Mamta Anta, Srimati Elias Shri Akhilesh Prasad Singh, Shri Narayan Das Gupta, Shri V. Vijay Sai Reddy, and Dr. Santanu Sen. Honorable members will be pleased to know that we are continuing with the same mechanism, 50% women as chairpersons. But I can assure you, it's only a matter of time. The percentage may go higher. Honorable members, it gives me immense pleasure to congratulate the entire nation at the successful conduct of G20 New Delhi summit that has filled heart of every Indian with pride and raised the leadership stature of the country at global level. I laud the Prime Minister's vision that made it truly people's G20. More than 200 meetings in 60 cities covering all the states and union territories of India is unprecedented. At the same time, the G20 New Delhi Leadership Summit with 42 delegations was one of the largest in size, scale, and scope. This has provided opportunity to the world to experience richness of diversity, democracy, and talent of India. India's G20 presidency has proven to be inclusive, ambitious, action-oriented, decisive, and people-centric. The outcomes of the G20 Leaders Summit are transformational and would contribute to the reshaping of the global world order in the decades ahead. Prime Minister's vision and guidance, the New Delhi G20 Leaders Declaration was adopted unanimously and with consensus, including on difficult issues. It is globally acknowledged that India's leadership and endeavors were crucial in bridging the North-South divide and overcoming the strong East-West polarization. This is reflective of India's elevated stature and standing and the work that this government has done in the last 9 years. It is a testament to the global trust and goodwill that India enjoys under the Prime Minister's leadership. It is a recognition that India is a voice of peace and moderation in a world ridden with divisions. India's presidency has been instrumental in bringing voice of Global South into the heart of G20 discourse. At the beginning of presidency, India hosted the Voice of the Global South Summit in January 2023 with participation of leaders of 125 countries. The priorities and expectations of the countries of the Global South were brought into G20 agenda. The summit declaration amplified and delivered on issues of interest to the developing countries, including
poverty alleviation, climate finance, handling debt vulnerabilities, food security, health security, digital infrastructure development, among others. Prime Minister's initiative led to the historic decision to accept African Union as a permanent member of the G20. It was a wonderful sight to see the world leaders pay respect to the father of the nation at Rajghat. They all endorsed the universal idea of peace and non-violence espoused by Mahatma Gandhi and its relevance in today's world. Prime Minister has himself made a strong pitch for reform of the international institutions which must keep pace with the changing times. This is important for true multilateralism in a divided world to ensure stability, growth, and development. The focus of the G20 has moved from a mere economic-centric to a much broader human-centric approach. The priority accorded to realizing sustainable development goals, reforming international financial institutions, establishing digital public infrastructure, promoting a green development pact, encouraging women-led development, taking global initiative on digital health, recognizing the role of tradition, medicine are praiseworthy. The energizing of the international economy, availability of greater resources for development, expansion of tourism, global workplace opportunities, stronger food security through millet production and consumption, addressing the skill gaps and mobility, mapping global value chains, supporting MSMEs, and a deeper commitment to biofuels are among the prominent outcomes of the G20 summit that will benefit the entire nation. The launch of India Middle East Europe Economic Corridor and the Global Biofuels Alliance during the summit are significant. These initiatives have sowed the seeds for a connected future in which India will continue to play important role. India's climate leadership was visible with the adoption of high-level principles on life for building pro-planet people and recognition by the developed world to substantially scale up investment and climate finance to meet climate goals. India's presidency achieved new milestones in setting up new G20 working groups on women and disaster risk reduction, as also a new G20 engagement group on startups. The Deccan high-level principles on food security, Gandhinagar roadmap on land initiative, Goa roadmap on tourism, Chennai high-level principles on blue and ocean economy, and the Kashi cultural pathway will provide global guidance in various sectors for times to come and make our people proud. Honorable members, next month, our parliament would have the honor to host the Parliament 20 Forum as part of our G20 presidency. I request each member of this August House to participate in welcoming the world to the mother of democracy and building on the theme Vasudhaiva Kutumbakam, one earth, one family, one future. I am confident that this August House will join me in commending Prime Minister's leadership in recognizing the enthusiasm of the people of India and appreciating the contribution of all organizations and individuals on this historic achievement. Papers to be laid on the table, Secretary General. Sir,
With your kind permission, I rise to lay on the table a statement in English and Hindi showing bills passed by the Houses of Parliament during the 260th session of Rajya Sabha and assented to by the President. Honorable members, I extend you warm greetings on the beginning of 261st session of Rajya Sabha. Honorable members, this session makes available a befitting opportunity to reflect and introspect on parliamentary journey of 75 years, starting from Svidhan Sabha achievements, experiences, memories, and learnings. Traversing over 7-decade journey from Svidhan Sabha to the present day in Amritkal, these hallowed precincts have witnessed many milestones. Honorable members, this journey historical moments from Tryst with Destiny at midnight of 15th August 1947 to unfolding of innovative forward-looking GST regime at midnight of June 30, 2017, and now this day. Deliberations in the Constituent Assembly in various sessions spread over 3 years, exemplified decorum and healthy debate. Contentious and highly divisive issues were negotiated in a spirit of consensus. There is enough takeaway from this for us all. Healthy debate is hallmark of our blossoming democracy. We must eschew confrontational posturing. Weaponizing disruption and disturbance as a strategy would never secure sanction of the people. We all are constitutionally ordained to nurture democratic values and must so justify and vindicate the trust of the people. We owe it to the nation to optimally utilize the opportunity and time to subserve public interest. Honorable members, this is also an occasion to recall and glorify our tenacious freedom fighters. They were the pioneers in true sense to fight for democratic rights. Our erudite constitutional forefathers, they were far-sighted visionaries who, after much deliberations and discussions, provided us a constitution which has stood the test of time. Our statesmen and politicians have time and again respected and abided by constitutional ideals and have democratized the constitution itself by taking its essence to the masses. The civil service, the bureaucrats who have been steadfast day in and day out in ensuring state machinery works in a free and fair manner. And finally, it is the masses whose deep faith and unflinching belief in the parliamentary democracy sustained it and thwarted the worst possible attempt to deny democratic values. The success of our democracy, honorable members, is thus a collective, concerted endeavor of we, the people of India. Expectedly, the honorable members, during the course of the day, would address the House and enlighten the people at large as regards our 75-year journey and unfold vision for years ahead. Honorable members, use of wit, humor, sarcasm, and even acerbic comments inside Parliament are important, inalienable facet of a vigorous democracy. These days, we don't get to hear such light-hearted exchanges. Hopefully, we'll see the revival of wit, humor, and scholarly debates. The hallowed precincts of Parliament for years have witnessed highs and lows, which we need to reflect and deliberate so as to take our Bharat to its rightful place in 2047, when it celebrates centenary of independence. I now invite
the Honorable Leader of the House, Shri Piyush Goyal, to initiate the discussion on parliamentary journey of 75 years, starting from Svidhan Sabha, achievements, experiences, memories, and learnings. We wanted special items also be taken in. This is what we said in this. We are welcoming this. We are not trying to disturb. Dr. Keshav, please address the chair. We wanted to say that. No, We please. just said, I'm not trying to, the moment you no, ask, I will look it down. No. But we Anyone wanted who women's raises reservation to be will taken suffer up. the consequences. Women's Have it from me, reservation to be taken honorable up members, in this have session. it from me, put it on the table immediately. Everyone who does it is in breach of rule and regulations. Don't force my hands. Don't force my hands. Dr. Keshav, this was least expected. How can you on earth There is a get it? method. How do we communicate No, with but you? what is I this? want to really know No, from. I'm so No, sorry. sir, I'm very I'm serious so on sorry. this issue. How do we communicate I'm with so you? sorry. You don't hear us. I'm so sorry. The only thing is No, I show. I'm some so kind of sorry, placard. Dr. Why? Dr. What's Keshav, the please, I want to please, disturb the house. please don't do it. Please don't do it. For my sake, don't do it. I'm not doing it. I can What assure, I said this was I can discussed assure yesterday the for members, 2 please hours. take 2 hours in the leaders of the opposition each meeting. of the members who has done it is cautioned by me not to do it. I am one of you. I depend on your wisdom, on your talent, on your knowledge to exemplify the best conduct which can be approved by the people outside. Let us not make mockery of it. Please. We are at a time when we are having great moments. Our country is defining global discourse. These are not political issues. All I say is, you will have the occasion. Dr. Keshav, take your seat, take your seat, take your seat. You will have the occasion to fully indicate agenda has been spelled out. You will know it. Jairam Ramesh, the least you can do is, if you want to address the chair, you can gentlemanly rise and make your point. Not in a cozy chair like this. One second. No. Honorable, one second, leader of the opposition, honorable leader of the opposition. और उसके पहले मैं खड़गे जी आपसे एक बात कहूंगा कि जो मैंने विट ह्यूमर की बात की है उसमें आप पर लागू नहीं है. आपने विट भी दिखाया है, ह्यूमर भी दिखाया है, सरकाज़म भी दिखाया है. वो बात मैंने बाकियों के लिए कही थी. नहीं, मैं ये सोच के आया था क्योंकि दौड़ते दौड़ते रात के 1:30 बजे यहाँ पर पहुंचा. मैं ये समझ के आया था आज का दिन बहुत अच्छा है और हमारे चेयरमैन साहब गुस्से में नहीं रहेंगे और इसको डराएंगे नहीं और बड़े प्रेम के साथ सबको लेकर चलेंगे. ये उम्मीद से मैं आया था. यहाँ आते ही एकदम आपने गुस्सा जाहिर किया, उन्होंने रोना, तो ये हो रहा है. तो कम से कम ये आज खुशी का दिन है. वो हमारे संजय सिंह को और चड्डा को कम से कम हाउस में लाए. नहीं तो 2 मेंबर को बाहर, सर 2 मेंबर को बाहर रख के अगर पहला दिन इम्पोर्टेंट दिन स्पेशल सेशन रहने, हाँ अमृतकाल नहीं, अमृतकाल तो कहो, मेरे लिए विषकाल तो कहो, लेकिन मैं आपसे यही विनती करता हूँ बाहर मेंबर्स को रख के नहीं होता, ठीक नहीं लगता. तो आप जरा कृपया ध्यान से आप करेंगे और बड़ा दिल दिखाइए, गुस्सा कम कर दीजिए, कार्रवाई अच्छा चलने दो. Honorable members, we are having discussion on a very important issue and it will be for 6-hour discussion and everyone will get an opportunity. Apart from the floor leaders, we have presence of very distinguished members who have seen more than 3 decades of parliamentary performance. I am quite sure, and I have no doubt, the contribution by honorable members will enlighten the people at large. And therefore, let us have a scholarly debate dictated only by decorum
and contribution. I call upon Leader of the House, Piyush Goyal, to me. And sir, it's a special sessions or 261st session of Rajya Sabha. Which one is Will the correct? special sessions be counted as a session? Kindly please enlighten, then I think we Okay. So it is 261st session, is special session. Mr. Piyush Goyal. Mr. Piyush Goyal. माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सौभाग्य है कि आज गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पर हम सब यहाँ पे इतने अच्छे वातावरण में चर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके माध्यम से सभी साथियों को, सांसदों को और देशवासियों को हम सबकी तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, पार्लियामेंट, महामहिम राष्ट्रपति जी और दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा का एक तीनों का समागम है। हमारा हाउस ऑफ एडर्स कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है, और मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है कि विश्व की सबसे बड़ी जनतंत्र लोकतंत्र की जननी में मुझे इस उच्च सदन में अब तीसरे टर्म में सेवा देने का मौका भारतीय जनता पार्टी ने दिया, उसके लिए सदैव आभारी रहूंगा। और जो सीखा, जो समझा, जो काम करने का अवसर मिला, उसके ऊपर आज की जो चर्चा है, ये वास्तव में हम सबको और ज्यादा उत्साह देगी आगे के लिए भी, कैसे हम देश के निर्माण में अपना अपना योगदान दे सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमारी जो लोकतंत्र है, ये एक प्रकार से प्रेरणादायी है, हम सबको प्रेरणा देती है। हमारा जो संविधान है, ये हम सबको और इच्छा शक्ति देती है। और पार्लियामेंट जो देशवासियों की उमंग है, जो देशवासियों के संकल्प हैं, उसको साधा करने का सबसे सही इंस्टीट्यूशन है। लोकतंत्र को जीवित रखने का, लोकतंत्र को और मजबूत बनाने का अगर कोई सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, तो वो हमारा संसद है। माननीय सभापति जी, इस देश के जनता 140 करोड़ लोग हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं, उसको सफल बनाते हैं। भारत की जो लोकतंत्र की प्रणाली है, वो स्वदेशी आधार पर बनी हुई है। इसीलिए जब गुलामी से अलग अलग देश मुक्त हुए, तो बहुत कम बड़े देश हैं जो आज भी लोकतंत्र के रूप में है। अधिकांश देशों में लोकतंत्र टिक नहीं पाया, अलग अलग प्रकार की समस्याएं आई, पर इतने बड़े देश में गुलामी के बाद भी लोकतंत्र दिनों दिन मजबूत होते जाना, ये हम सबका सौभाग्य भी है, और उसमें दोनों सदनों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। भारत, जिसको हम सब लोकतंत्र की जननी मानते हैं, इसमें पुराने वैदिक टेक्स्ट में भी जाते हैं तो वहां भी ये शब्द देखने को मिलते हैं। सभा, समिति, संसद, ये शब्द हजारों साल पहले भारत में कहे जाते थे, इस्तेमाल होते थे, सुने जाते थे। ये सिर्फ हमने शब्द नहीं यहाँ पे लिए हैं, उसकी आत्मा भी आज सदन में, लोकसभा, राज्यसभा में देखने को मिलती है। और मैं समझता हूं कि उससे ज्यादा हमें दूर जाने की जरूरत नहीं है। अभी अभी माननीय अध्यक्ष G20 की भारत की अध्यक्षता की सफलता की बात कर रहे थे। जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना पूरे विश्व में, कि हमारे लिए देश ही नहीं, पूरा विश्व एक परिवार है और हम सबकी चिंता करने वाला देश है। ये जो भावना लेके भारत की G20 की अध्यक्षता सफलता अभी संपन्न हुई है, और
समिट समाप्त है और नवंबर को हमारा अध्यक्षता पूरा होगा। हमने अवश्य पूरे विश्व में एक अमिट छाप छोड़ी है भारत की अध्यक्षता की, भारत के नेतृत्व की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार से आज पूरे विश्व में एक एक्सेप्टेंस बनी है, उनकी लीडरशिप के प्रति जो आस्था देखने को मिलती है, वो पूरे देश को, देशवासियों को गौरवान्वित करती है। माननीय अध्यक्ष जी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो संविधान सभा आयोजित हुई थी, उसमें भी जो डिबेट्स हुए थे उसका स्तर बहुत ऊंचा था। बहुत कुछ हमें उसमें पढ़ते हैं तो देखने सुनने को मिलता है। बड़े बड़े लोगों ने उस समय जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स चल रही थी तब कहा था कि 2 सदन की आवश्यकता क्या है। बड़े बड़े व्यक्ति जैसे कि माननीय श्री मोहम्मद ताहिर, माननीय श्री शिवन लाल सक्सेना, माननीय श्री लोकनाथ मिश्रा जी ने ओपोज किया था कि 2 सेकंड चैम्बर की आवश्यकता नहीं है, एक ही चैम्बर बहुत होगा। लेकिन माननीय श्री गोपाल स्वामी आयंगर, डॉक्टर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और श्रद्धेय सर्वेपल्ली राधाकृष्णन जी ने भी इस बात को बल दिया था, इस बात का समर्थन किया था कि 2 सदन होने चाहिए, उच्च सदन का अपना स्थान है। और उसी के बाद अप्रैल 1952 में 1952 में ये सदन बनाया गया और इसकी पहली सभा 13 मई 1952 को हुई। तो एक प्रकार से इस 71 वर्ष का जो प्रवाह है उसकी चर्चा आज हम सब करने वाले हैं। राज्यसभा की सामान्यता ये अपेक्षा थी कि अच्छी चर्चा होगी, अच्छे डिबेट्स होंगे और चर्चा और वार्तालाप के माध्यम से और एक प्रकार से वाद विवाद से ऊपर उठकर देश हित को सामने रखते हुए राज्यसभा चलेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि हमारी जो भी डिबेट होती है, जो वार्तालाप, डिस्कशन, डायलॉग होते हैं, चाहे सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो, उन सब में एक चीज कॉमन है, एक चीज पक्की है कि हमारा जो शपथ है, देश की सेवा करने का शपथ और देश के हितों को रक्षा करने का शपथ, हम सब उसको बहुत बल देंगे, सब उसको सर्वोपरि रखेंगे और मैं समझता हूं उसमें हम सभी ने अपना अपना दायित्व अपने हिसाब से निभाया है। इस 71 वर्ष की प्रवाह में कई सारे महानुभावों ने भारत की संविधान की रक्षा करने के लिए, भारत की लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए अपना अपना योगदान दिया। हमारे कई सारे वरिष्ठ चेयरमैन रहे, अध्यक्ष रहे, सभी का नाम ना लूं लेकिन कुछ जो प्रमुख नाम तुरंत ध्यान में आते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, जस्टिस हिदायतुल्लाह, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, श्री KR नारायण जी, श्री भैरव सिंह शेखावत जी, हामिद अंसारी जी, श्री वेंकैया नायडू जी और अब हमारे वर्तमान में अध्यक्ष श्री जगदीप धनखड़ जी, सभी ने अपने अपने कार्यकाल में इस सदन की गरिमा बनाई, इस सदन को और नए आयामों तक लेके जाने में बहुत अच्छा योगदान दिया। वेंकैया नायडू जी की तो बात याद आती रहती है, तो कई बार व्यंग भी करते थे, कई बार विषय को बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते थे। मुझे याद है एक बार उन्होंने कहा था, एंड आई कोट, पीपल वांट द हाउस टू डिस्कस, डिबेट एंड डिसाइड 3 Ds. They do not want the other D, that is disruption. और मैं समझता हूं कि हम सब ने अपने अपने तरीके से प्रयास किया है कि सदन अच्छी तरीके से चले और सदन में अच्छी चर्चा के माध्यम से हम देश की सेवा कर पाए। बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े जनता के प्रतिनिधि, कई सारे हमारे मेंबर जो नॉमिनेट होते हैं, बहुत वरिष्ठ महानुभावों ने इस सदन की गरिमा बढ़ाई है और अपना अपना छाप छोड़ी है कि कैसे उनके समय में इस सदन ने काम किया। आज भी हमारे जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं, एक से बढ़ के एक अलग अलग क्षेत्र में इन्होंने
बहुत देश सेवा की है, बहुत बड़ा योगदान किया है। और मैं समझता हूँ ये भी इस सदन की एक विशेषता है कि अलग अलग प्रकार से, चाहे वो खेल की दुनिया से हो, चाहे आर्टिस्ट हो, फिल्म की दुनिया से, म्यूजिक की दुनिया से, ड्रामा की दुनिया से, अलग अलग बड़े बड़े महानुभाव ने इस सदन में की गरिमा बढ़ाई है। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन ने बहुत सारे बड़े फैसले भी लिए जो जिंदगी भर और देश के लिए बहुत अहम भूमिका निभाते हैं और शायद सदियों सदियों तक याद रखे जाएंगे। कई सारी डिबेट्स, बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग डिबेट्स भी सदन में हुई हैं, चाहे वो अटल जी, अडवाणी जी, सुषमा जी की डिबेट्स हो यहाँ पे, चाहे वो डॉक्टर करण सिंह जी या वीपी सिंह जी, चंद्रशेखर जी या हमारे वर्तमान में सदस्य पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर श्री देवे गौड़ा जी की हो। अलग अलग बहुत महत्वपूर्ण डिबेट्स में बड़े बड़े महानुभावों ने भाग लिया है। कई बार बड़ी फियर्स डिबेट्स होती थी, वाद विवाद भी बढ़ जाता था, लेकिन साधारणता बहुत गंभीर वाद विवाद में भी मौका लेके ये रहता था कि कैसे ना कैसे हम सब मिलके काम करें। एक बार एक बहुत गर्मा गर्मी की डिबेट में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक आह्वान दिया था कि हम सब राजनीतिक दल मिलजुल के काम करें, अपने अलग अलग जो सोच है, विचारधारा है, उसको रखते हुए भी हम रास्ता ढूंढ के इसमें से आगे चलें और देश हित और जनहित के लिए हम अपना अपना काम करें। मुझे याद आता है माननीय अध्यक्ष जी, एक सदस्य थे सीपी कम्युनिस्ट पार्टी के, श्री पी राजीव, फिर जाके केरल में मंत्री बने, सीपीआईएम के बड़े वरिष्ठ नेता थे, बहुत ही अच्छी तैयारी करके आते थे सर, और नई नई चीजें जो लगभग हम में से कई लोगों को ध्यान नहीं था कि इस सदन की अधिकार क्षेत्र में पड़ती हैं, ऐसे ऐसे नए नए विषय कई बार श्री पी राजीव लाते थे। मैं उनको अभी भी मिलता हूं तो आनंद आता है, चाहे केरल में हो, चाहे कभी वो दिल्ली आए। और इसी प्रकार से अगर हम सब एक दूसरे की आलोचना कर सकते हैं, हमारे में मतभेद हो सकता है, पर अगर हम मतभेद से ऊपर उठे और मतभेद को शालीनता के साथ रखते हैं, तो मैं समझता हूं कि जो हमारे पुराने सदस्यों ने यहाँ पे एक हमें उदाहरण के रूप में अच्छी अच्छी बातें दिखाई, और वर्तमान में भी सदस्य एक प्रकार से मिलजुल के काम करने के पूरा कोशिश करते हैं, ये देश को तेज गति से आगे लेके जाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने 1955 में एक बात रखी थी और मैं कोट करना चाहूंगा। ये 1955 की बात है, यानी वी आर लगभग 68 साल पहले की बात आज भी इस सदन में गूंजे तो कितनी रेलेवेंट होगी। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था, we want to maintain good name and dignity of this house. I do not want it to be said that sometimes these discussions suggest that we are not behaving like serious, responsible MPs, but rather like irresponsible professional agitators. अलग अलग तरीके से अपने वरिष्ठ नेताओं ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, समझाया है, लेकिन मेरा विश्वास है कि हम सबकी भावना और हम सबका मन यही बोलता है कि सदन अच्छी तरीके से चल के इस देश में नई नई चीजें कैसे इस देश को और आगे बढ़ाएं। इस अमृत काल में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको एक आह्वान दिया है कि भारत एक विकसित देश बने, उसमें हम सबका अपना अपना रोल रहेगा। विपक्ष का भी उतना ही अहम रोल है कि वो नियंत्रण में रखे सरकार को, सरकार का रोल है कि वो नए नए कानून, नए नए योजनाएं, नए नए तरीकों से देश की दिशा और दशा आगे बदले। और मुझे लगता है कि सभी माननीय सदस्य भली भांति अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का पूरा प्रयास कर भी रहे, आगे भी करते रहे। कई बार अगर मेमोरी में जाए तो अटल जी की जो कविता सुनाने की आदत थी, कई बार वो कविता में चल पड़ते थे।
माननीय अरुण जेटली जी जो लीडर ऑफ द हाउस भी रह चुके हैं, उसके पहले लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी रह चुके हैं, उनका कटाक्ष बड़ा शार्प होता था और अपने तरीके से बहुत विटली, बहुत अच्छी तरीके से वो विषय को रखते थे। जैसे उन्होंने कहा था दिस इज द न्यू नॉर्मल, इस प्रकार के अलग अलग उनके भी हमारे पास बहुत सुंदर यादें हैं। माननीय वेंकैया नायडू जी के तेलुगु में प्रोवर्ब्स देने की आदत थी, बीच बीच में वो याद करते थे। माननीय गुलाम नबी आजाद जी शेर व शायरी में काफी माहिर थे, निकल पड़ते थे। कई बार माननीय खड़गे जी भी आजकल शेर व शायरी बहुत करने लग गए हैं। पर ये सदन की गरिमा रही है कि हम सब कई बार गर्मा गर्मी में भी विषय को बहुत सुंदर तरीके से संभाल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसी से लोगों का दिल भी जीतते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे याद है जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुलाम नबी आजाद जी को उनकी टर्म खत्म होने पर फेयरवेल स्पीच में याद किया था, उन गुलाम नबी जी का और प्रणब दा का, माननीय पूर्व महामहिम राष्ट्रपति जी श्री प्रणब मुखर्जी जी का जो काम सरकार में रहते हुए, एक विपक्षी सरकार गुजरात में थी, उस समय भी किस प्रकार से उन्होंने गुजरात के लोगों को कश्मीर से पुनः वापस जाने के लिए मदद की जब आतंकवाद चरम सीमा पे था। उस समय के जो अनुभव प्रधानमंत्री जी ने यहीं से बताए थे, एक प्रकार से हम सबको एक संदेशा देता है कि हमने सबने अच्छी बातें याद करके अच्छी चीजें करने के लिए अपना अपना प्रयास करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने तो वास्तव में ये भी कहा था कि मैं सैल्यूट करता हूं गुलाम नबी आजाद जी को और आगे भी मैं आपसे सलाह मशुरा करते रहूंगा। और यही एक मित्रता की भावना से हम सभी सत्ता दल या विपक्ष इस मित्रता की भावना से आगे भी काम करते रहेंगे, ये हमारा सबका विश्वास है। और एक प्रकार से सदन की गरिमा उसी में होगी कि हम देशहित और जनहित को अगर सर्वोपरि रखते हैं तो स्वाभाविक रूप से सदन की भी गरिमा बढ़ते जाएगी और अच्छा काम होते जाएगा। वैसे मुझे याद आता है जब मैं पहली बार मेडन स्पीच देने के लिए उठा था, मैं नया नया सदस्य था, जुलाई 2010 की बात है और माननीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जहां अब बैठे उसी के बाजू में नासिर हुसैन की सीट पे, जहां तक मुझे याद है मैं वहां पे बैठा था और माया सिंह जी हमारी चीफ विप थी, आई बोला कि परसों तुम्हें IRDA और सेबी का कुछ वाद विवाद चल रहा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और प्रणब दा वित्त मंत्री थे, तुम्हें उसकी डिबेट को शुरू करना है। और मैं एकदम हैरान हो गया, 2 ही दिन हुए थे मुझे सदन में आए, शायद तब तक तो कुर्ता पजामा और जैकेट भी नहीं सिलवाया था, जब माया सिंह जी ने कहा कि 2 दिन बाद तुम्हें ये डिबेट शुरू करनी है। और मैं भी थोड़ा परेशान हुआ, मैं उसी दिन रात को मुंबई गया क्योंकि सब्जेक्ट भी मेरे लिए नया था, इंश्योरेंस या के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, सेबी तो समझता था, फिर भी तो वाद विवाद समझने के लिए पूरे 2 दिन, उस दिन से लेके अगले दूसरे दिन तक दिन रात रिसर्च करते रहे और पूरी समझी कि क्या ये विषय है, क्या समस्या है, क्या विवाद है। और इसके मुझे फायदा भी हुआ, उसमें मुझे कई चीजें मालूम पड़ी, जो निजी इंश्योरेंस कंपनियों की पॉलिसीज होती हैं वो कैसे एक तरफा होती थी उस समय। मुझे विश्वास है अब तो बहुत बदलाव आ गया होगा, पर नई नई इंश्योरेंस कंपनीज आनी शुरू हुई थी और एक तरफा पॉलिसीज होती थी। तो उसका मुझे व्यक्तिगत लाभ तो ये हुआ कि मैंने कई मेरी पॉलिसीज कैंसिल कर दी जो निजी कंपनियों की ली हुई थी, जब ध्यान में आया कि कैसे वो हमारे खिलाफ, उपभोक्ता के खिलाफ जाती थी। और फिर मैंने मेडन स्पीच जो दी, उस समय मेडन स्पीच में समय का सीमा नहीं होती थी, तो काम लगभग 30-40 घंटे मेहनत करके पढ़ाई की थी, तो स्पीच भी लंबी चली, लगभग 40-42 मिनट तक मैंने अपनी बात रखी।
पर उसका इतना समाधान मिला जब उस समय के माननीय वित्त मंत्री ने उस स्पीच के बाद जब डिबेट पे रिप्लाई कर रहे थे, एक प्रकार से कुछ वाक्य लेके, मैं वाक्य पे तो नहीं पूरा पढ़ना चाहूंगा, पर उन्होंने जिस प्रकार से मुझे अप्रिशिएट किया, जिस प्रकार से मुझे एनकरेज किया, वो वास्तव में मेरे लिए, मेरे स्मरण में जिंदगी भर रहेगा। और उस समय उनकी बात में जो भाव था, जो एक प्रकार से एप्रिसिएशन में उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से मैंने विषय को रखा मेरी मेडन स्पीच में और पूरे सब्जेक्ट को स्टडी किया था, वो आगे चल के मुझे पार्लियामेंट की सेवा करने में मदद करेगा। उन्होंने यहां तक कहा था, दिस इज द चेंबर, दिस इज द सिस्टम वेयर वी एग्री टू डिसएग्री, there will be divergence of views, there will be differences of opinion, and through these divergences, through these differences of opinion, through discussion, we will arrive at a solution. ये उनका वाक्य मेरे लिए जिंदगी भर एक प्रकार से दिशा दिखाता है कि कैसे हमने आगे चल के अपनी अपनी बात भी रखनी है, दूसरों की बात से भी सीखना है। मुझे याद आता है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं सामने, एक बार एक कैश फॉर वोट्स का स्कैंडल हुआ था, उसके ऊपर बड़ा गंभीर चर्चा भी चल रही थी। तो माननीय मनमोहन सिंह जी ने उर्दू के शायर मिर्जा गालिब जी को कोट किया था, हमको है उनसे वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। और उसी समय तुरंत माननीय सुषमा स्वराज जी जो उस तरह बैठी थी, उन्होंने जवाब में कहा, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। ये जो भावना थी दोनों तरफ, ये वास्तव में सदन की गरिमा बढ़ाती थी। और ये है जो छाप, मैं समझता हूं जो यादें हम यहां से लेके जब नए सदन के नए प्रांगण में जाएंगे, नए वास्तु में जाएंगे, तब ये यादें लेके मैं समझता हूं हम सभी प्रयास करेंगे कि और अच्छे तरीके से हम आगे अपना अपना काम कर सकें। अटल जी ने एक बार मई 1996 में अपने भाषण में, एक बहुत ऐतिहासिक भाषण में कहा था, सत्ता का तो खेल चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। और मैं समझता हूं कि हम सब ने कभी ना कभी रिकंसाइल करना पड़ेगा कि परिस्थितियां बदली है और हम कोई भी एंटाइटल नहीं। ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कई जगह पे देखने को मिलता है, कई जगह पे अनुभव होता है, उससे जब देश उठेगा तो मैं समझता हूं हम सही माने में देश की सेवा में और अच्छा काम कर सकेंगे। छोटी छोटी प्रतीक होते हैं, जैसे लाल बत्ती खत्म कर दी गई थी सब मंत्रियों की, छोटे प्रतीक, लेकिन बहुत बड़ा मैसेज देश को कि सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट किसी के लिए भी इस देश में अब नहीं चल सकता। 2014 में हमारी सरकार बनी, वो भी एक ऐतिहासिक मौका था कि पहली बार गैर कांग्रेस सरकार पूर्ण बहुमत के साथ देश ने चुन के भेजी थी। कई सारे बड़े लैंडमार्क लेजिस्लेशंस पास किए गए हैं सदन में 2014 से अभी तक, जिसका देश की विकास यात्रा में और सामाजिक समरसता, समाज को और आगे लेके जाने में बहुत बड़ा योगदान है। मैं समझता हूँ कोई भी इस बात को इनकार नहीं कर सकता कि 9 वर्ष का समय एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव, देश के बदलाव का समय रहा है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय वित्त मंत्री निर्मला जी के नेतृत्व में, और हम सब ने एक प्रकार से उस प्रवाह में 100 वर्ष लोकतंत्र के मनाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, जब हमने 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 और 35A को समाप्त करने का एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय इस सदन में लिया,
सही माने में एक प्रकार से देश को जोड़ने के लिए, देश को एक बनाने के लिए, जिस देश में हमारी सबकी इच्छा थी कि एक संविधान रहे, एक ही कानून व्यवस्था रहे, कानून व्यवस्था सभी के लिए सामान्य रहे, और जो लाभ देश के अन्य इलाकों में लोगों को मिलते हैं वो हमारे कश्मीर के भाई बहनों को भी मिले, उसके लिए एक बहुत अहम कदम इस सदन से शुरू हुआ था और फिर यहां से लोकसभा में गया। 5 अगस्त 2019 का वो दिन इस सदन के लिए एक बहुत ही यादगार और ऐतिहासिक दिन सदैव रहेगा। एक प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो देश की एकता और एकजुटता को मजबूत करने का तीव्र इच्छा शक्ति थी, इच्छा था, काम था और प्रयास था, उसको हमने उस दिन पूरी तरीके से संपन्न करके देश को एक बनाने का काम पूरा किया। वैसे तो जब आर्टिकल 370 लगा ही था, तभी उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने इच्छा जाहिर की थी कि ये तो टेम्पररी प्रोविजन है, कुछ वर्षों में निकल जाएगा और कुछ समय लगेगा जम्मू कश्मीर को अपना खुद का भविष्य भारत के साथ अच्छी तरीके से बनाने में। वो कुछ समय थोड़ा लंबा हो गया, हम सब के आनंद की बात है, हमने वो निर्णय 2019 में लिया। कुछ ऐसी चीजें ध्यान आती, जैसे उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड बनाने का विषय था। कितनी सुंदर तरीके से लगभग सबकी सर्वसम्मति से और एक साथ मिलजुल के ये 3 नए राज्य बने। 3 नए राज्यों को एक अपने आगे का भविष्य तय करने का मौका मिला और कंसेंसस के साथ पीसफुली ये डायलॉग और डिस्कशन के माध्यम से ये तीनों राज्य बने। थोड़ा बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कई ऐसे विषय होते हैं जहां पे हम ऐसी सर्वसम्मति नहीं बना पाते, और मैं समझता हूं कि उसमें भी हम शालीनता से अपनी अपनी बात रख के आगे चलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे याद है, मैं भी इस सदन में था जब तेलंगाना का नया राज्य बना। वो दृश्य शायद एक भद्दे के रूप में, एक बहुत खराब उदाहरण के रूप में इस देश के स्मरण में रहेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे कभी हमारे नए भवन पे कभी ऐसा दृश्य देश और दुनिया को देखना ना पड़े। माननीय अध्यक्ष जी, 2017 में एक ऐतिहासिक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिससे वन नेशन वन टैक्स स्थापित हुआ, और ये इसलिए ऐतिहासिक कहता हूं क्योंकि लगभग एक प्रकार से इसमें भी सर्वसम्मति से बना, पूरे देश की सम्मति, देश के हर राज्य ने इसमें अपना अपना सहयोग दिया, और वी आर द हाउस ऑफ एल्डर रिफ्लेक्टिंग द स्टेट विशेस एंड डिजायर्स। तो इस प्रकार से सभी राज्य मिलके हमारे पास ये प्रस्ताव लाए, और वो जो 2017 का दिन है, ऐतिहासिक मिडनाइट सेशन 30 जून 1 जुलाई की रात को 2017 में सेंट्रल हॉल में हुआ, और आज उसका लाभ पूरा देश अनुभव भी कर रहा है। व्यापार उद्योग को नया बल मिला है, बहुत तेज गति से देश आगे बढ़ रहा है। कई सारे ऐसे निर्णय जो बहुत महत्वपूर्ण रहे, एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट पर्सेस, वो एक विषय है जिसमें अलग अलग व्यू पॉइंट्स थे, और पार्लियामेंट ने उसको पास करके एक बड़ा अच्छा संदेश दिया। इसी प्रकार से ट्रिपल तलाक को जब क्रिमिनलाइज किया, उसका कानून 2019 में लाया गया, हमारी बहनें माताओं को अपना सम्मान मिला, और एक बड़ा सिग्निफिकेंट रिफॉर्म का मेजर था जिसने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करने के लिए अपना अपना योगदान दिया है। और इसी प्रकार से हमारी महिलाओं के सम्मान के लिए ये सरकार तत्पर रही है, और लगातार एक के बाद एक 9 साढ़े 9 वर्षों में इतने सारे बड़े निर्णय हमारी बहनों के लिए, माताओं के लिए, हमारे बेटियों के लिए इस देश में किए गए हैं। राइट फ्रॉम द डे वन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेके आज तक और भविष्य में भी भारत हमारे बहनों को और अच्छा सम्मान मिले और अच्छा स्थान मिले। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि बड़े पैमाने में बहनें काम में आ रही हैं, दे आर ज्वाइनिंग द वर्कफोर्स, और भारत की अर्थव्यवस्था में भी और भारत की
आगे के भविष्य में उनका योगदान बढ़े, ये मुझे लगता है हम सबका एक प्रयास है, हम सबका इच्छा भी है। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ थोड़े खराब हमारे सामने उदाहरण भी है जिससे सीखने को मिला, जैसे पार्लियामेंट पे जो अटैक हुआ था, उससे हम सबको और ज्यादा चौकन्ने रहना पड़ेगा। और सुरक्षा के जो प्रयास किए जाते हैं, सुरक्षा कर्मी जो अपना काम करते हैं, सुरक्षा हमारी और हमारे देश की आन बान और शान संभालने के लिए जो सुरक्षा कर्मी काम करते हैं, मैं समझता हूं उसमें हम सबका भी योगदान हो, हम भी कोऑपरेट करें और हम भी थोड़ा सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट से ऊपर उठ जाएं, तो शायद हमारी भी सुरक्षा और देश के सम्मान की सुरक्षा और अच्छी हो पाएगी और 2001 जैसे अटैक कभी नहीं आ पाएंगे। उसके बाद हमने एक पूरे देश को संदेश, एक यूनिटी का संदेश तो दिया कि हमारा लोकतंत्र को कोई हरा नहीं सकता, आवर डेमोक्रेसी इज इनविंसिबल। परंतु मुझे लगता है इसको पुनः हम स्मरण करते रहे और आगे भी कभी हमारे देश की एकता और एकजुटता पे कोई आहत नहीं आए, ये हम सबका सामूहिक प्रयास रहना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत एक बहुत आत्मविश्वास के साथ बहुत तेज गति से विकास की प्रवाह में आगे बढ़ रहा है। इसमें कई सारे मौके आते हैं हम सबको, जिसमें एक आवाज से देशहित और जनहित को हम आगे लेके जा सकते हैं। और मैं समझता हूं जो हमने पुराने लेसन सीखे हैं, उससे हमें आगे के भविष्य को बनाने में और अच्छा बल मिलेगा। जैसे कि जब इमरजेंसी आई थी और एक प्रकार से भारत के लोकतंत्र के कई सारे प्रावधान रोक दिए गए थे, उन पे अंकुश लगा दिया गया था, तब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून, भंग कर दिया गया संघ को, कैसा चढ़ा जुनून। और मैं समझता हूँ ये एक बहुत वेकअप कॉल था पूरे देश के लिए। कई सारे हमने इसमें से सबक सीखे और आगे चल के जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसको भी फिर पुनः बदला गया। 44th अमेंडमेंट 1978 में आने से 1978 में जो फंडामेंटल राइट्स, हमारे अधिकारों के ऊपर जो अंकुश लगा था, उसको पुनः एक बार स्थापित किया गया। और बाद में तो कई सारे मौके आए जिसमें सदन ने भी और कोर्टों ने भी भारत की जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं हमारे आजादी के, हमारे संविधान के, उसको कोई आहत ना पहुंचे, उसके लिए कई सारे कदम हम सब ने और देशवासियों ने उठाए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, कई सारे ऐसे कानून थे जो पुराने गुलामी के समय से चले आ रहे थे। हम एक प्रयास कर रहे हैं कि उन कानूनों को भी बदला जाए, उनको कंटेम्पररी, आधुनिक बनाया जाए, आज के बदले हुए परिप्रेक्ष्य में कैसे वो रेलेवेंट हो, उसके लिए प्रयास सभी सरकारें करती हैं। कंपनीज एक्ट पहले 1956 में था, तो पूरी तरीके से लाइसेंस राज को बल देता था, उसको बदला गया 2013 में और कई सारे मेजर्स लिए जिससे उद्योग व्यापार को और मिल सके। उसमें भी समय समय पे कई सारे और बदलाव 2014 से 2022 तक लाए गए हैं, जिससे आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और ईज ऑफ लिविंग को हमने अपनी प्राथमिक बनाते हुए देश को आगे बढ़ाने का काम किया। जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी है, ये भी अपने आप में देश के लिए बहुत गर्व की बात है, हम सब के लिए गर्व है। यह हम सबका सदन, आधुनिकता से पूरा युग और आगे भविष्य की जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने वाला ये नया वास्तु, मैं समझता हूँ पूरे विश्व में एक भारत के लिए एक नई उत्साह और उमंग के साथ आगे जाने का एक संदेश पहुंचाएगा। ऐसे ही पिछले 2 महीनों में भारत मंडपम, जो पुराना प्रगति मैदान था, और एक द्वारका में स्थित नया यशो भूमि, 2 और बड़े सेंटर्स का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये दोनों नए भारत के प्रतीक के रूप में देश को आगे लेके जाएंगे। अब हमारा देश
विश्व स्तरीय फेयर्स, एग्जीबिशंस, कन्वेंशंस, कॉन्फ्रेंसेस कर पाएगा। और उसका हमने जीता जागता एक स्वरूप G20 लीडर्स समिट में भी देखा। ये सब निर्णय अब इस देश को आगे लेके जाने के लिए समावेशी और एक प्रकार से पारदर्शिता के प्रतीक के रूप में लोगों की आशाएं, अपेक्षाएं पूरा करने के लिए सबका प्रयास है। और हम सब मिलके इस प्रयास में जुड़े, देशवासियों का विश्वास जीते और देशवासियों को एक कर्तव्य भावना से जो 5 फ्रंट माननीय प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव में लाल किले से दिए थे कि हम सब 140 करोड़ देशवासी कर्तव्य भावना से देश की एकता और एकजुटता को संभालें, देश को गुलामी की मानसिकता से निकालें। हमारे इतिहास से जो सीखने को मिला है, जो हमारे इतिहास में, हमारी परंपराओं में, हमारे जो रिच कल्चर और हेरिटेज पारिवारिक वैल्यू सिस्टम्स हैं, उन सबसे जो हम सीखते हैं, उस सब को कर्तव्य भावना से आगे लेके जाएं, नारी शक्ति का सम्मान करें और एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत को विकसित भारत बनाने के लिए हम सब संकल्प लेके आगे चलें। इस इच्छा के साथ इस सदन में भी ये आज का विषय हम सब चर्चा करें। हम सब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो एक संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भाषण था, जिसमें उन्होंने कहा था, and I quote, where constitutional methods are open, there can be no justification for unconstitutional methods. मैं समझता हूं ये एक बड़ा अच्छा वाक्य है जो हम सबको याद दिलाता रहते हैं कि आगे चल के भी ये सदन अपनी गरिमा रख के, इतिहास के पन्नों से बहुत कुछ हमें सीखने मिला। हमारे सबके अपने अपने अनुभव रहे, अच्छे अच्छे विचार आते हैं जब हम पुराने दिन इस सुंदर सदन में याद करते हैं। इस बहुत महत्वपूर्ण कक्ष में जो पल गुजारे हम सब ने मिलके, उन सबको जब यादगार के रूप में हम संवारे। लेकिन जब नए भवन में जाते हैं, नए वास्तु में जाते हैं, नई सोच के साथ इस देश की दिशा और दशा को नया रूप देने के लिए, भारत के 140 करोड़ लोगों की आशाएं, अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हम सब संकल्प लेके प्रतिबद्धता के साथ नए सदन में प्रवेश करेंगे कल। उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं और नए सदन के शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय पीयूष गोयल जी। अब लीडर ऑफ अपोजिशन माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी। सर, आपका मैं आभारी हूँ क्योंकि मुझे आप जल्द बुलाए और अपनी बात रखने के लिए मुझे मौका मिला, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं इस शब्द से शुरू करूंगा ताकि कोई ये न समझे कि हमारे लिए ही ये बोल रहे हैं। मैं आम जनता जो बोलती है वही बात मैं यहाँ रख रहा हूँ। और संविधान, आगे ये भी बोलूंगा कि संविधान कैसा बना और संविधान के तहत हम कहाँ तक चल पाए और संविधान ने कितनी हमको आजादी दी है, उसका हम कहाँ तक किस ढंग से अच्छी तरीके से देश को बनाने में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आपके भाषण में तो आपके अचीवमेंट भी आए, आपके अनुभव भी आए और आप जो चाहते थे उसको यहाँ पर रखने की कोशिश की। लेकिन मैं इससे शुरू करता हूँ, बदलना है तो अब हालात बदलो, बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है।
देना है तो युवाओं को रोजगार दो, सबको बेरोजगार करके क्या होता है। दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों को मारने से क्या होता है। दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों के मारने से क्या होता है। कुछ कर नहीं सकते तो कुर्सी छोड़ दो। बात बात में डराने से क्या होता है। बात में डराने से क्या होता है। अपनी हुक्मरानी पर तुम्हें गुरूर है, लोगों को डराने से धमकाने से क्या होता है। बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है। और यहाँ से वहां जाने से और क्या होने वाला है। सर, तो सबको गर्व है देश पे, और इसीलिए मैं कहूंगा कि जो संविधान आजादी के बाद बनी, और इस संविधान के तहत हम सभी को चलना है, और देश के लिए हम कुछ करना है। और इसमें मैं एक ही बात कहूंगा कि इस पार्लियामेंट्री जर्नी में 75 साल जो संविधान सभा का ये जो संविधान करके हुआ, और उसके अचीवमेंट, एक्सपीरियंस, मेमोरीज, लर्निंग्स, इस पे ही हमको बात करना था। तो मैं इसी पे थोड़े शब्दों में बोलूंगा कि एक मेरी भी जर्नी 50 साल में असेंबली और पार्लियामेंट मिलके 52 साल हिस्सा है मेरा भी, लेकिन मुझे यहाँ ज्यादा समय नहीं मिला, मेरे को वहीं पर रखना पड़ा, बेंगलुरु में ही था। यहाँ बहुत से नेताओं के भाषण सुनने को मुझे कम मौका मिला, सिर्फ 14 साल मिले। कहाँ जा रहे हैं? नहीं, बड़ी गड़बड़ी में जा रहे थे तो मुझे लगा, बड़ी गड़बड़ी में जा रहे तो मुझे लगा, तो इसलिए पूछा था। ये टच करना कानून का उल्लंघन भी है। अब ये साहब, हमारे हाउस में उल्लंघन बहुत होते हैं, फिर भी आप दिलदार हैं, उसको संभाल लेते हैं। उसीलिए मैं बोला उसको, संजय सिंह को और चड्डा को बुला लो। आगे आगे वही चिंता थी मेरे को, उधर गए फिर। सर, ये संविधान सभा, ये भवन आजाद भारत के सारे बड़े फैसलों का गवाह है, और इसी भवन में हमारी संविधान सभा 11 सत्रों में 165 दिन बैठी। उसने 90,000 शब्दों वाला जो संविधान बनाया, वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। जब नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसकी मंजूरी दी। वहां की बहस सुनने के लिए करीब 53,000 लोग आए थे, विजिटर्स, यानी इस मौके पे। सभापति जी, आपने अपने जयपुर के पीठासीन
अधिकारी सम्मेलन में संविधान सभा के 11 सत्रों के व्यवधान रहित संचालन को एक आदर्श स्थिति कहा था। यानी किस ढंग से वो चला और कितनी अच्छी थी, ये आपने जयपुर के अपने मीटिंग में अपने वक्तव्य में कहा। तो ऐसा वो एक वक्त था जो सबको लेके लोग चलते थे और लोकतंत्र को ठीक ढंग से ठीक रास्ते पे ले जाने के लिए कितनी कोशिशें होती थी, इससे ये अंदाजा लगता है। उस वक्त कौन थे प्राइम मिनिस्टर? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नहीं सर, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है, इधर क्यों देख रहे नहीं, इधर ये टैक्टिकल है। मतलब ऐसे लगता है कि बहुत अच्छा स्क्रिप्ट किया हुआ है। साहब मेरे आपको याद दिला रहे थे साहब, सर, आपको याद दिला रहे थे जरा नहीं, बिल्कुल ऐसा ही था, क्योंकि तब राष्ट्र की बुनियाद रखने का काम हो रहा था। बुनियाद रखा, और बुनियाद के अंदर जो पत्थर जाते हैं वो दिखते नहीं, और जब वॉल पे आप नाम लगाते हो वही दिखते हैं। आप कभी भी जाइए साहब, आप तो 2-4 अनेक कोर्ट तो उद्घाटन किए होंगे अब तक, कहीं भी जाइए, जो बिल्डिंग ठहरती है बुनियाद पर, वो अंदर के मजबूत पत्थर किसको भी नहीं दिखते, लेकिन ऊपर का नाम। माने खड़गे जी, मैं हाल में भारत मंडपम गया था। हाँ, नींव देखिए, भी देखी और ऊपर भी देखा। यही मैं बोल रहा हूँ, आप बहुत से लेकिन देखते हैं दुनिया वो के नेताओं ने जो मुझे कहा, आश्चर्यचकित हो गया। सर, बोलने दीजिए। उसकी नींव का भी आधार समझ में आ गया, ऊपर का भी समझ में आ गया। उसीलिए साहब इतने बिल्डिंग्स, आप कौन से भी इमारत बनी होगी, राजे रजवाड़ों के महल बने होंगे, और हमारी पार्लियामेंट बनी, पहले की पार्लियामेंट है, नई है, और कुछ कल जाने में अभी वो दिक्कत है, कौन देखे कौन नहीं दे, हमारी जगह कहाँ है वो भी ढूंढना पड़ेगा। उसमें मैं आपकी मदद करूंगा। अच्छा, और आज ही करूंगा। चलो सर, संविधान सभा ने चुने गए विभिन्न धाराओं के लोग महान नायक थे, उसमें अपने दौर के महारथी थे, उनका बड़ा जमीनी अनुभव भी था। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, मानवीय गरिमा और लोकतंत्र उनकी नसों में समाया था, क्योंकि उसके लिए ही तो वो लड़ रहे थे। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने हमें जो संविधान दी है, वही हमें आज भी एक बनाए हुए हैं, और उसी ने राष्ट्र के लिए सशक्त ढांचा तैयार किया है। इसी कारण लोकतंत्र के सिद्धांत और व्यवहार आज जनता के स्वभाव का अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान हमारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। इसी के आधार पर संसदीय प्रणाली के हक में फैसला हुआ, और अडल्ट फ्रेंचाइज जो हमको मिला वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आपको तो मालूम है, पहले जब वोटिंग पावर थी 1935 के इस एक्ट के तहत, हाँ, जो टैक्स देते हैं, जिनके पास जमीन है, जो पढ़े लिखे हैं, जो इनकम टैक्स पे करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ही वोटिंग का अधिकार था। लेकिन हमने जो संविधान बनाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल, जितने भी महान नेता उस वक्त इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थे, उन्होंने अडल्ट फ्रेंचाइज दिया। आप लिखो या आप पढ़े हो
या अनपढ़ हो, आप गरीब हो या आप अमीर हो, सबको एक ही वोट और उसका वैल्यू भी एक ही। जो एक बड़ा अमीर आदमी, फर्ज करो अदानी के जैसा, उसको भी एक ही वोट, उसका वैल्यू भी एक ही वोट। लेकिन आज हमारे जो कर्मचारी है, छोटे लोग हैं, काम करते हैं, उनको भी एक ही वोट। ये किसने दिया? ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने वाले कांग्रेस के उस वक्त आजादी, जिन्होंने आजादी के लिए लड़े और ये दिलाए और ये ढांचा बना। इसीलिए आज भी अडल्ट फ्रेंचाइज से ये देश जिंदा है, एक है और इंक्लूसिव है। और ये इंक्लूसिव बोले तो थोड़ा सा डर होता है उनको। इंक्लूसिव बोले तो फिर इंडिया, उसको क्या करते हैं छोटा करने के लिए, हमारे नड्डा साहब इंडी इंडी बोलते हैं। ठीक है, उसीलिए तो बोलो नाम बदलने से कुछ नहीं होता। हाँ, इंडी बोलो, इंडी बोलो और कुछ भी बोलो, हम है इंडिया। अरे आप कुछ भी बोलो, हम सब इंडिया। अरे भाई तो, अरे आप क्यों करते? बेंगलुरु से आए हैं, चुप बैठो। राजस्थान से बेंगलोर। हमारे नायकों ने बहुत मंथन करके जो संविधान दिया, वो जनता की आकांक्षाओं को खरा उतरा है। बाबा साहब संविधान सभा के अपने अंतिम भाषण में उन्होंने कहा था, मैं ये कोट करना चाहता, अगर आपकी इजाजत है। इजाजत है? मसौदा समिति का कार्य बहुत ही कठिन हो जाता यदि ये संविधान सभा विभिन्न विचार वाले व्यक्तियों का एक समुदाय मात्र होती, विभिन्न विचारधाराओं के लोगों का एक समुदाय होता, एक एक उखड़े हुए फर्श के समान होती, जिसमें कहीं एक काला पत्थर होता तो कहीं सफेद, और जिसमें प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक समुदाय स्वयं अपने को विधिवेता समझता, सिवाय उपद्रव के और कुछ नहीं होता। तो उस वक्त बोल रहे कि इतने सब रहने से उपद्रव के कुछ नहीं होता। सभा में कांग्रेस पक्ष की उपस्थिति, सभा में कांग्रेस पक्ष की उपस्थिति ने इस उपद्रव की संभावना को पूर्णतः मिटा दिया और इसी के कारण कार्यवाहियों में व्यवस्था और अनुशासन दोनों बने।
कांग्रेस पक्ष के अनुशासन के कारण ही मसौदा समिति यह निश्चित रूप में जानकर कि प्रत्येक अनुच्छेद और प्रत्येक संशोधन का क्या भाग्य होगा, इस संविधान का संचालन कर बैठे। तो ये कांग्रेस के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कैसा संविधान बना, क्योंकि उस वक्त इतने डिफरेंट लोग थे, इंटेलिजेंट लोग थे, और एक दूसरे से वो अगर लड़ते भी तो बाहर आकर एक होते थे। वो कभी किसी के ऊपर कुछ नुक्ताचीनी करके बैठते नहीं थे। सर, मैं और एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि ये बाबा साहब अम्बेडकर है ड्राफ्टिंग यानी संविधान बनाने के लिए कितनी कोशिश की है बहुत लोगों को मालूम नहीं। चूंकि ये कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन थे, वो क्या ये क्या, ऐसा बोलने वाले बहुत हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति को हम नहीं चाहते। ये खासकर ये हमेशा ये दलितों की हालत होती है, तो जब उन्होंने इतना कष्ट करके रात दिन बैठ के जो संविधान उन्होंने बनाया, इसीलिए उसमें एक टीटी कृष्णमाचारी का एक कहावत अपने स्टेटमेंट है, मैं आपके सामने पढ़ के। संविधान का निर्माण करने वाली चुनिंदा 7 सदस्यों की ड्राफ्टिंग कमेटी में सबसे बड़ी भूमिका डॉक्टर अंबेडकर ने बना। 7 लोगों, इसमें क्या होता, क्योंकि उसके एक सदस्य ने वो 7 में एक सदस्य त्याग पत्र दिया, कितने बचे? 6। एक सदस्य का निधन हो गया, कितने बचे? 5। जबकि एक अमेरिका चले गया, एक सदस्य रियासत के कार्यों में व्यस्त रहे और 2 सदस्य दिल्ली से दूर थे। उनकी सेहत खराब होने के कारण कम मौजूदगी होती थी, तो सारा तो बाबा ये इतिहास है, हम इसको कभी नहीं कहते हैं। बार बार यही ड्राफ्टिंग कमेटी के ये थे, सब मेंबर्स ने मिल। अब ये टीटी कृष्णमाचारी जो मेंबर थे उसके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के और खासकर इस ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने ये बात कही। तो एक व्यक्ति देश बदलने के लिए, संविधान को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन को जीवित रखने के लिए सबसे कंसल्ट करके कंसेंसस जो बनाते हैं, वो किसके जमाने में हुआ? वो कांग्रेस ने किया। उसकी रक्षा के लिए हम लड़ रहे हैं, उसी के लिए हम तैयार हो गए। सब कुछ हम ये नहीं समझते, हम जो कहेंगे वो हमको मिलेगा। हमारा एक सभी का एक इरादा है कि जो चीज इतने कष्ट से, इतने मेहनत से कमाई है, उसको हम गुमाना नहीं चाहते। तो इसलिए सर, आपको और एक यही बात करूंगा कि इसके बाद 1950 में भारत ने जब लोकतंत्र अपनाया, तो बहुत से विदेशी विद्वानों को लगता था कि यहाँ लोकतंत्र विफल हो जाएगा, क्योंकि ये करोड़ों अंगूठे छाप लोग हैं। तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री, आपको तो मालूम है, फिर मैं बोलने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी चर्चिल ने यहाँ तक कहा था, अंग्रेज चले गए तो उनके द्वारा स्थापित न्यायपालिका, स्वास्थ्य सेवाएं, रेलवे और लोक निर्माण का पूरा तंत्र खत्म हो जाएगा। ये चर्चिल का, यानी इतना अंडरमाइन किया हमको कि ये लोग अनपढ़ है, अंगूठे छाप है, ये लोग क्या करेंगे, डेमोक्रेसी को कैसा टिकाएंगे। लेकिन हमने टिका के दिखाया, हमने इसको मजबूत करा, इसका संरक्षण किया, और बार बार हमको टोका जाता है, 70 साल में आपने क्या किया? अरे 70 साल में तो यही किया हमने, इसको
इसको मजबूती दी, इसको मजबूती दी हमने, लोकतंत्र को बचाया हमने और संविधान को लेकर हमने आगे बढ़े। और बार बार आपके पास कुछ नहीं बोलने के लिए, ये बोल तो जाओ, और कितने दिन बोलते बोलते जाओ। सर, तब वर्ल्ड वार 2 में, उसके बाद में 7 आजाद हुए देशों में सैनिक तानाशाही थी, फिर भी हमारे लोग मजबूती के साथ इस देश में इस संविधान को टिकाया, डेमोक्रेसी को टिकाया। लेकिन हमारे यहाँ सत्ता का हस्तांतरण गोली या बंदूक से नहीं हुआ। महात्मा गांधी जी हमें जो आजादी दिलाए वो सिर्फ नॉन वायलेंस, नॉन कोऑपरेशन, और इसीलिए हमारी जो संविधान में हमारी जो आदर्श हमारे सामने है, उनके वजह से आज सभी लोग इसका पालन करते हैं और इसको आगे ले जाते हैं। दूसरी बात मैं कहूंगा कि इस भवन में 75 सालों के दौरान देश की किस्मत बदली है और देश की सूरत बदलने वाली तमाम कानूनें यहाँ बनी है। जमींदारी अबोलिशन, छुआछूत मिटाने का, ओबीसी का आरक्षण के लिए कानून यहाँ बने, यहाँ तक कि ईडब्ल्यूएस के भी बने। सभापति जी ने, मैं पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी का खास तौर पर जिक्र करना चाहता हूँ। उनका मानना था कि संसद तभी तक प्रासंगिक है जब एक समय की बदलती जरूरतों के मुताबिक निरंतर विकसित गतिशील संस्था बनी रहती है। तेजी से बदलाव के दौर में संसद की तेजी से काम करना होगा, ये नेहरू जी का कहना है। तो हम तो कोऑपरेट कर रहे तेजी से काम करने के लिए, लेकिन कभी कभी झगड़े की बात ही ज्यादा होती है। सर, नेहरू जी के पहले कैबिनेट में कैसा, यानी मैं ये बता रहा हूं कि कैसे डेमोक्रेटिक वे से पहले चलती थी। नेहरू जी के कैबिनेट में वो सबको अपने साथ लेके चलते थे। उन्होंने जो पहली कैबिनेट बनाई उसमें सबसे योग्य लोगों को शामिल किया।